Hello, my dear disciples, my dear learners, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and doing good. Students, Jai Sri Krishna, Radhe Radhe, Jai Sri Sham. Students, we were studying or we are learning how to speak fluent and confident English. Because English is very important in every sphere of life. Whenever you go for interview, whenever you go for a job, in a private job, mostly they want to know your skill, how to speak, how is your confidence, how is your way of talking. So that is very important. And English is a global language, international language, and most of the syllabus or most of the books are available in English. So it is mandatory, it is necessary to each and everyone that we must speak and learn English. So for the beginners, उनके लिए a word vocab is required also, and part of speech tense required, because without tenses and word vocab we cannot speak. If we don't have the vocab, we don't have the 2000 3000 words, we cannot speak. So you have to make a habit that you write and remember 10 to 15 words daily. That is mandatory. And you must revise the part speech. पार्ट स्पीच को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसको यूज सेंटेंस तभी बन पाएंगे जब आप पार्ट स्पीच को अच्छे से जो है स्टडी कर लेंगे. उसके बाद में मेक अ हैबिट, आपको हैबिट बनानी है. क्रिएट एन एटमोस्फियर, एक एटमोस्फियर तैयार करिए दैट यू स्पीक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में सोचिए. इफ यू आर अलोन देन क्लोज योर आईज एंड थिंक इन इंग्लिश. इफ यू आर टेकिंग रेस्ट, you are on your bed, think in English. Okay, if you are going somewhere, you are going to a market to purchase something, then speak in English, think in English that I am going to market, that I have to purchase grocery, green groceries or sugar, other items, okay, for the household, na? Okay, that is required. If you are alone, stand yourself in front of a mirror and speak out. Record your video and then listen it. How is your pronunciation? आपका pronunciation कैसा है? So ये बहुत important है. And make a circle. एक सर्कल बनाइए. Then you can speak out with your friends. 2-3 आपके फ्रेंड्स हो, ऐसे आपके फैमिली में भी आप बच्चों से, अपने लोगों से जो है, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. अगर जब तक आप एटमोस्फेयर नहीं बनाएंगे, unless you make an atmosphere for spoken English, then you can't speak. Think in English, listen English music, listen English news, read newspapers, English newspapers. That will improve your word vocab. So, and start from today. आपसे आपको शुरुआत करनी है. Don't think that I'll start after my spoken will be good, then I'll speak. No, never. Either you are right or wrong, you speak, you have to speak. आपको बोलना है. If you are right or wrong, doesn't matter. And where you are speaking, the person may be laughing at you, let them laugh. उनको हंसने दीजिए. It doesn't matter. Today they are laughing, then other day they will follow you. आपको अनुसरण करेंगे आपका वो. तो आपको डिटरमाइंड रहना है, हेजिटेट नहीं होना है. यू मस्ट नॉट हेजिटेट. बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना. इफ somebody is laughing, there are more than 20, 30, 40 people there, you don't hesitate, speak out. Okay, if you make a habit, then you will be a good speaker. And most important, you try to listen the people who are speaking good English. उनको सुनिए आप. what are you grasping or learning, it will come out, it will, उसको बोल पाओगे आप. जो आप ग्रहण करेंगे, जो आपके अंदर जो जाएगा, then will come out. तो अच्छे जो स्पीकर है, एलोक्वेंट स्पीकर है, उनको ध्यान से सुनिए, लिसन देम केयरफुली एंड ग्रैस्प. एंड उसके बाद में आप ट्राई टू स्पीक. स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट और स्मॉल सेंटेंसेस, स्मॉल वर्ड सेंटेंसेस, देन ट्राई टू एक्सपेंस इट. ओके, तो शुरुआत में हमें क्या करना है, कैसे करना है, और हम जो है हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इंग्लिश, कैसे शुरुआत करनी है, उसके बारे में बात करेंगे. देखिए, अभी तो हमने पार्ट स्पीच वगैरह किया है.
क्योंकि बहुत रिक्वायर्ड था वो, उसके बिना नहीं हो पाता है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है कुछ वर्ड्स का जो है वर्ड वैकैब जो है आपको मैं कराऊं। ओके, लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इंग्लिश। किस प्रकार से हम जो है इंग्लिश में वार्तालाप कर सकते हैं। देखिए, एक्सक्यूज मी, सर, मैडम, किसी से अगर हमें कुछ बोलना है, इफ यू आर गोइंग ऑन द वे देन यू नीड अ साइट, यू कैन से स्पीक एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मूव अ बिट, वुड यू गिव मी साइट, है ना, ऐसे बोल सकते हैं आप। या किसी से कुछ लेना है, ओके, किसी से बात करनी है, देन यू से एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर। ओके, ओल्डर वुमेन से आप क्या बोलोगे, थोड़ा सा जिसकी एज है तो उसको मैम बोल सकते हैं, यंगर से थोड़ा मिस बोलोगे तो उनको जो है अच्छा लगेगा। सॉरी सर, सॉरी मैडम, कम अगेन, है ना, दोबारा बताइए इसके बारे में, या दोबारा आइए, है ना, दोनों मीनिंग हो सकते हैं इसके। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आई डोंट रिमेंबर योर नेम, मुझे आपका नाम याद नहीं है, यू आर, आई थिंक यू आर अशोक, अनिल, जो भी है, ठीक है। माई नेम इज सिंधु, मेरा नाम क्या है, वो बोलेगा सामने वाला मेरा नाम सिंधु है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इस तरह से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं किसी से भी। सब शुरुआत में एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर बोल करके, एक्सक्यूज मी मिस, मैम, है ना, और सॉरी, कम अगेन, दोबारा बोलिए, रिपीट इट, है ना, ऐसे बोल सकते हैं आप, प्लीज रिपीट। माई नेम इज, आप पूछ सकते हैं, सॉरी सर, आई डोंट रिमेंबर योर नेम, मुझे आपका नाम याद नहीं है, आप पूछ सकते हैं। मान लो सडनली यू मीट समवन एंड यू नो हिम, आप उसको जानते हो लेकिन उसका नाम आपको याद नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उसको बोलोगे आई डोंट रिमेंबर योर नेम, यू आर, आई थिंक अशोक, अमन, जो भी है ना। जब सामने वाला बोले माय नेम इज सिंधु और आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आपको अपना नाम बताना है ना। आप तीन तरह से जो है ग्रीटिंग्स कर सकते हैं ना, ग्रीटिंग्स कर सकते हैं तीन तरीके से। ग्रीटिंग्स जैसे कर सकते हैं इन द मॉर्निंग, 12 बजे तक आप किसी को भी मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। इफ़ यू आर मीटिंग फर्स्ट टाइम, जब आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं, वैसे तो मॉर्निंग का टाइम सुबह का ही होता है, लेकिन इफ़ यू आर मीटिंग सम टाइम, फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार आप जो है दिन में मिल रहे हैं, तो उसको जो है 12 तक जो है उसको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून 12 बजे से लेके 3, 4, 5 बजे तक जो है आप क्या कर सकते हैं, आप गुड आफ्टरनून जो है बोल सकते हैं। और गुड नून भी होता है, वैसे गुड नून भी जो है बोल सकते हैं 12 बजे के आसपास जो है ना, गुड नून जो है बोल सकते हैं 12 बजे। गुड इवनिंग का बोलोगे आप, गुड इवनिंग जो है 5 बजे से लेके 7, 8 बजे तक आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। और व्हेन यू आर लिविंग समवन, जब आप किसी को छोड़ रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, आप उसको गुड नाइट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम, है ना, सी यू टुमारो, है, सी यू टुमारो, गुड नाइट, ओके, आई हैव स्वीट ड्रीम्स, इस तरह से बोल सकते हैं आप। नाइस टू मीट यू, अगर आप किससे पहली बार मिलते हैं, व्हेन यू मीट अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है, यू विल स्पीक नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, प्लीज टू भी बोल सकते हैं, प्लीज टू यू ना, प्लीज टू मीट यू। इट इज अ प्लेजर, इट इज अ प्लेजर, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्या लगा, अच्छा लगा। इस तरह से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं कन्वर्सेशन, ठीक है। स्मॉल टॉक्स कैसे करें, हम छोटी बातें जो है शुरुआत में जो है छोटी छोटी जो है सेंटेंस से, छोटे छोटे वर्ड से हम जो है स्टार्ट करेंगे। बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जिनको बिल्कुल भी जो है इंग्लिश नहीं आती है बोलना, और दे हेजिटेट, वो क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, उनको उनके माइंड में जो है डर रहता है कि मैं गलत बोलूंगा और थोड़ा पता नहीं क्या होगा, या फिर उसके पास थोड़े बहुत वर्ड्स है उसको बोल नहीं पाता है ना, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टार्ट करिए। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है आपका, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। हाउ आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप आजकल, है ना, इन दी हाउ आर यू डूइंग दीज डेज, है ना, इन दीज डेज कह सकते हैं आपको। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू, सामने वाला पूछेगा आपसे कि आप कैसे हैं, आप उससे पूछेंगे, फर्स्ट टाइम पूछेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, और हाउ आर यू डूइंग, आपका कैसा क्या चल रहा है। आई एम वेल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज इट गोइंग, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में हम पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है आपका ना। इट इज गोइंग वेल, कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू, धन्यवाद, आपने पूछा मुझसे। हाउ आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं आजकल, आप आजकल क्या कर रहे हैं। हाउ आर द थिंग्स, इनफॉर्मल ना, बोलचाल की भाषा में पूछ सकते हैं हाउ आर द थिंग्स, सब कुछ कैसा चल रहा है, फाइन, अच्छा चल रहा है, थैंक्स, धन्यवाद ना। इस तरह से हम जो है शुरुआत कर सकते हैं। व्हाट्सअप, कैसे है, कैसे हो आप,
वेरी इनफॉर्मल, व्हाट्सअप बोल सकते हो, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, कैसे हो, हैं, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ओके, हैं, बहुत सारे वर्ड है, आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, आपके बारे में, आप कैसे हैं, सामने वाला पूछेगा आपसे कि आप, मैं तो ठीक हूं, आप बताइए। तो इस तरह से हम जो है किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, उसका हाल चाल जो है इस तरह से पूछ सकते हैं हम, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, यदि आप किसी को कोई बात बोल रहा है उसको समझ नहीं पाते हो सही से, फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड और इवन सम आइडिया रिलेटिंग टू योर कन्वर्सेशन, इफ यू आर स्टार्टिंग समवन, इफ यू ट्राई टू स्पीक विद अ स्ट्रेंजर एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, आप उसको समझ में नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहे उसके वर्ड्स, उसने क्या बोला है, तो क्या कहोगे आप उससे, उससे क्या बोलोगे, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप कृपा करके आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, पुनः उसको बोल सकते हैं क्या, आई एम सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट, क्या आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं क्या, इस तरह से बोल सकते हैं, और भी है ना, वुड यू रिपीट इट, है ना, इस तरह से, डू यू केयर टू एलैबोरेट ऑन दिस, क्या आप उसको विस्तार से बता सकते हैं क्या, इसका वर्णन कर सकते हैं क्या, इफ यू सिंपली डिडंट हियर समथिंग, यदि आपने सामान्य रूप से कुछ सुना नहीं है, जस्ट से इट लाइक दिस, तो आप ऐसा कह सकते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आई डेंट हियर दैट, मैं उसको सुन नहीं पाया, जो आपने बोला उसको मैं सुन नहीं पाया, कुड यू प्लीज रिपीट, क्या आप उसको पुनः उसको पुनः बोल सकते हैं क्या आप उसको जो है दोबारा से बोल सकते हैं क्या, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आई डेंट कैच दैट, मुझे समझ में नहीं आया ना, आई डेंट कैच दैट, आई डेंट ग्रैस्प दैट, ग्रैस्प भी कर सकते हैं, स्पोकन में चल जाएगा, कुड यू प्लीज रिपीट, है, या कुड का मतलब, आप कुड का मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं पास्ट के रूप में, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या है ये, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में है ना, रिक्वेस्ट के रूप में, ये क्या है, रिक्वेस्ट के रूप में, कुड यू से दैट अगेन प्लीज, क्या आप उसको दोबारा से जो है बता सकते हैं क्या, कम अगेन, या इसको, तो कम अगेन का मीनिंग क्या है, प्लीज रिपीट इट, है ना, इसको दोबारा से बताइए, दिस इज वेरी इनफॉर्मल, बहुत इनफॉर्मल है, एंड इट कैन साउंड र्यूड टू, किसी को जो है ये थोड़ा बहुत अजीब लग सकती है ना, इसको कम अगेन को ना, तो इसका यूज थोड़ा कम करना चाहिए हमें, ये ऊपर वाले हम यूज कर सकते हैं, कुड यू, या कुड यू से दैट अगेन प्लीज, है ना, प्लीज का यूज जरूर करें हम, है ना, प्लीज से क्या होता है कि सामने वाला का ऐसा लगता है कि दैट यू आर लिटरेट, और यू कैन से यू आर अ मैनर्ड और अ कल्चर्ड पर्सन, ना, थोड़ा लगता है कि भाई दैट ठीक है, आप ना मैनर्ड है, आप मैनर्स है आपके, अदरवाइज प्लीज का यूज नहीं करते, थोड़ा सा वो बुरा लग सकता है। देखिए, यदि आप लेट हो रहे हैं, है ना, आपको जाना है और somebody is talking to you, आपसे बात कर रहा है, आप कैसे कहेंगे उसको, एकदम से नहीं कह सकते कि प्लीज मैं जा रहा हूं ना, वो थोड़ा बुरा लगेगा, कैसे कहेंगे आप, आई एम गोइंग, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, या फिर क्या कहेंगे आप कहेंगे आई हैव टू गो एट गोइंग, मुझे क्या है, गेट गोइंग, यानी कि मुझे जाना है, इट इज टाइम फॉर मी टू गो, समय हो गया है मेरे जाने का, आई थिंक मुझे जाना है, मुझे जो है ऑफिस जाना है, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, आई एम गोइंग टू समवेयर एल्स, ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, आई हैव टू गेट गोइंग, मुझे जाना है, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, मुझे मेरे जाने का समय हो गया है। दिस इज पोलाइट एंड न्यूट्रल, ये पोलाइट है, बहुत आसानी से आप किसी को भी जो है ऐसा बोल सकते हैं। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है, मुझे जो है बहुत देर हो रही है, कैन वी कंटिन्यू लेटर, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं क्या, कैन वी, इस टॉपिक पर, है ना, ऑन दिस टॉपिक, या कैन वी कंटिन्यू, बाद में हम चर्चा कर सकते हैं, बाद में बात कर सकते हैं क्या, आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है, मुझे जल्दी से जाना है, कैन वी कंटिन्यू लेटर, है ना, क्या हम बाद में बात करें, दिस इज वेरी मोर इनफॉर्मल बट आल्सो पोलाइट, कैसी है, पोलाइट है ना, ये सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा अगर आप ऐसे उसको बोलोगे, आई हैव टू रन, कैन वी कंटिन्यू इट प्लीज, कैन यू लेटर प्लीज, है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, है ना, मान लो आप किसी बात कर रहे हैं और उसको एंड कैसे करना है कन्वर्सेशन को, ना, किस तरह से आप करेंगे आप उसको, देखिए, बिफोर सेइंग गुड बाय कहने से पहले क्या कहेंगे आप, इट इज पोलाइट टू से समथिंग लाइक, किस तरह से बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, हैव अ गुड डे, क्या कहोगे उसको आप, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ रहे, दिस वर्स इन एनी सिचुएशन, किसी परिस्थिति में आप बोल सकते हैं कि आप जा रहे हो किसी को, और जाने से पहले क्या कहोगे आप उसको, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैं, एंजॉय योर डे, अपने दिन को जो है आनंद से जिए, हैं,
एंजॉय योर डे, हाँ, आनंद करना। दिस वन इज मोर फॉर्मल, थोड़ा फॉर्मल होता है ये, पर आप बोल सकते हैं एंजॉय योर डे, है ना। गुड लक भी बोल सकते हैं, ओके, गुड लक, सी यू टुमारो, लेट्स मीट टुमारो, है। यदि पर्सन नीड्स इट, यदि इसको आवश्यकता है किसी व्यक्ति को, आप उसको गुड लक बोल सकते हैं। वो जा रहा है किसी काम पे, तो कहते हो आप गुड लक, ओके, सी यू टुमारो। इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन में डिपेंड करेगा कि आप उसको गुड लक बोलो, बेस्ट ऑफ लक बोलो। वो कहीं जा रहा है और आप भी जा रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो गुड लक, ओके, लेट्स मीट टुमारो या नेक्स्ट वीक, है ऐसे। टॉक टू सून, और कह रहा है कि आपसे जल्दी जो है बात करता हूं मैं ना, मैंने पहले क्या बोलोगे आप उसको, आपसे जल्दी ही बात करता हूं, टॉक टू सून, ओके। दिस न्यूट्रल डजंट नेसेसरली मीन दैट यू विल रियली टॉक टू द पर्सन सून। कर ऐसा जरूर नहीं है कि आप जल्दी बात करोगे उससे, लेकिन फिर भी आप उसको बोल सकते हो कि भाई टॉक टू यू सून। ग्रेट सीइंग यू, आपको जो है देखकर बहुत अच्छा लगा। ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपसे जो है बात कर कर बहुत अच्छा लगा, ये बात आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज इनफॉर्मल येट कॉमन। कैच यू लेटर, है, हाँ, कह रहा कि मैं आपसे बाद में मिलता हूं, कैच यू लेटर, आपसे बाद में मिलता हूं, अभी मुझे जाने दीजिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने जो है कन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिगिनर के लिए जो है रहता है कि भाई हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना। इसको आप आराम से सुनिए वीडियो को, और फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। टिप्स फॉर इंग्लिश कन्वर्सेशन और क्या हो सकते हैं हमारे पास, लिसन, लिसन ऑलवेज लिसन, है ना। इमिटेट कॉपिंग, इफ यू आर लिसनिंग एलोक्वेंट अ गुड स्पीकर, क्या करना है, उसको लिसन करना है। लिसन ऑलवेज लिसन, उसको बार बार सुनना है। क्या सुनना है, उसको बार बार सुनना है। आपको लगता है कि जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, और मुझे आपको लगता है कि दैट आई कैन इम्प्रूव लिसनिंग दिस पर्सन, इस पर्सन को सुनकर मैं अपनी स्पोकन जो है इंप्रूव कर सकता हूं, तो उसको इमिटेट करिए, उसकी कॉपी करिए। किस तरह से जो है प्रोनाउंसिएशन जो है कर रहा है, वर्ड्स का जो है प्रोनाउंसिएशन कैसे हो पा रहा है, कैसे कर रहे हैं ये, है ना। कॉपिंग, उसको कॉपी करिए, ओके। यूज सम ऑडियो ऐप, कुछ ऑडियो ऐप भी आप सुन सकते हैं, कन्वर्सेशन ऐप्स भी सुन सकते हैं। टॉक टू योरसेल्फ, अपने स्वयं से, मैंने कहा ना, स्टैंड योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ, अपने स्वयं से बात करिए, ना, अपने बारे में बात करिए, ठीक है, आपके डेली रूटीन के बारे में बात करिए। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देखिए मिरर के सामने, लाउडली, जोर से बोलना आपको ना। जोर से बोलने से क्या होगा, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा हो जाएगा। डिस्क्राइब व्हाट यू सी, और जो आप देख रहे हो उसको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। जो भी से मान लो दिन में कुछ देख के आए, उसको लुक एट द मिरर एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड डिस्क्राइब दीज इवेंट्स और दीज हैपनिंग्स, ओके। लिसन टू एंड वॉच इंग्लिश मीडिया, है ना, मैंने पहले बताया था। यू मस्ट लिसन इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश मूवीज, यू वॉच इंग्लिश मूवीज एंड read English newspapers, okay, and listen English music, slow English music from the beginning. You must you should एक तरह से सुनना चाहिए किसको, इंग्लिश म्यूजिक को ना, लिसन इंग्लिश म्यूजिक, ओके। ट्राई टंग ट्विस्टर्स, और टंग ट्विस्टर्स बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको बार बार में क्या करना है, बोलना है अपने, उससे कि आप उनको बोल नहीं पाते हैं, और जब आप किसी के सामने बोलेंगे तो फिर वो नहीं बोल पाओगे, तो उनको बार बार बोलिए। रीड आउट लाउड, और जो है कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो जोर से पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन जो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने स्पोकन के बारे में जो है, बहुत शुरुआत में हम कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक इन द बिगिनिंग, और बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और आगे जो है बात करते हैं। थैंक यू।